اور رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور اللہ کے پیغمبر اپنے بستر پہ محو استراحت تھے۔ طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ عفیفہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پہ ستارے مسکرا رہے ہیں۔ طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پہ ستارے جھل ملا رہے ہیں۔ جب طیبہ کائنات نے ان ستاروں کی جگمگاہٹ کو اور ان کی جھل ملاہٹ کو، مسکراہٹ کو، چمک اور دمک کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان ہوں، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فعل بدی جواب دیا، برجستہ جواب دیا، سوچو بچار کر کے نہیں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، فوراً کہا، عائشہ واللہ عالم انا لا ادری، میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ میں بتاؤں ستارے کتنے ہیں، میں نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ہاں میں صرف اپنا آئیڈیا دے سکتا ہوں، گیس لگا سکتا ہوں، اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کر سکتا ہوں کہ یہ ستارے اتنے لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو گننا چاہے تو وہ گنتے گنتے تھک جائے گا، مر جائے گا، مگر ان ستاروں کو شمار میں نہیں لا سکتا۔ تو طیبہ کائنات نے فوراً ایک اور سوال کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کے اصحاب میں، آپ کی آل میں، آپ کے یاروں میں، وفاداروں میں، پیروکاروں میں، حبداروں میں، جانثاروں میں، آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اللہ کے پیغمبر نے طیبہ کائنات کے اس سوال کے جواب میں پھر برجستہ جواب دیا، کوئی کیلکولیشن کر کے نہیں، سوچو بچار کر کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، بلکہ فوراً کہا، ہاں عائشہ میرے یاروں میں، میرے غلاموں میں، میرے پیروکاروں میں عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے جب یہ جواب سنا تو وہ خاموش ہو گئی، مہر پلب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا۔ پیغمبر تو چہرہ شناس تھے، حضور نے جب طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا، عائشہ خیریت، کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تو نے بات کو کیوں سمیٹا؟ میرے جواب کے بعد تو نے خاموشی کیوں طاری کر دی؟ میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پہ ہنسی کی کرن رقصہ نہیں ہوئی؟ عائشہ بات کیا ہے؟ تو نے بات کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے نبی آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے نبی آج تک میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں، آپ کے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں میرا باپ ابو بکر عبادت میں سب سے آگے، اطاعت میں سب سے آگے، ریاضت میں سب سے آگے، تلاوت میں سب سے آگے، بندگی میں سب سے آگے، جستجو میں سب سے آگے، حمد و ثنا میں آگے، تمجید و تقدیس میں آگے، تعریف و تسبیح و تحلیل میں آگے، لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا۔ تو میں آج سمجھی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا۔ فقیر والی والوں، نبی کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو اور تجھے عظمت صدیق کا اندازہ ہو۔ میرے پیغمبر نے کہا، عائشہ عائشہ عائشہ، تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟
تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے پھر کہا عائشہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر زبان محمد سے سن، لسان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، اعلان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب علماء طلباء سے کہتا ہوں، اہل علم، اہل دل، اہل فکر، اہل نظر، اہل ذوق سے کہتا ہوں، اہل عمق اور ڈیپلی بات کو لینے والے جو گہرائی تک اترتے ہیں ان کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا. یہ مقرر تیزی میں گزار دیتا ہے اس جملے کو کہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف. کون عمر؟ جس کو مانگنے کے لیے نبی روتا نظر آئے. کون عمر؟ جس کو مانگنے کے لیے نبی ساری رات حتیم کعبہ میں جاگتا نظر آئے. وہ عمر کہ جس عمر نے جب کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھلتا نظر آئے. کون عمر؟ جو جب کلمہ پڑھے تو فرشتے نعرے لگاتے نظر آئے. کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو کعبے کی چوکھٹ پہ توحید کے سجدے شروع ہو جائیں. کون عمر؟ جو زمین پہ بولے اللہ عرش پہ قرآن بنا دے. کون عمر؟ جو زمین پہ پردے کا مشورہ دے اللہ شریعت بنا دے. کون عمر؟ جو زمین پہ عائشہ کی صفائی میں جو جملہ کہے اللہ اس کو قرآن بنا دے. اور کون عمر؟ جو منبر پہ بیٹھ کے بولے اللہ اس کی آواز کو کئی میل دور پہنچا دے. کون عمر؟ جو دریاؤں کو چٹ لکھے تو دریا بھی چل پڑے. اور کون عمر؟ جو زلزلے پہ درہ مارے تو زلزلہ ایسا رکے کہ 1400 سال گزر گئے اس کے بعد ساری دنیا میں زلزلے آئے مگر مدینے میں نہیں آیا. کون عمر؟ کون عمر؟ جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جہاں سے تو گزرے گا قیامت تک شیطان نہیں گزرے گا. کون عمر؟ جس کے لیے پیغمبر کہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. عمر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کھلا ہوتا تو تیرے سر پہ نبوت کا تاج آتا. کون عمر؟ جس کے لیے پیغمبر نے کہا عمر جب کسی کا باپ مرے تو بچے روتے ہیں، بچے مرے تو باپ روتا ہے. عمر جب تو مرے گا میرا اسلام روئے گا. اس عمر کے لیے پیغمبر نے یہ جملہ کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس جملے کے سمندر کی تہ میں کبھی جا کے سوچو تو صحیح کہ عمر جیسے کے لیے کہہ دیا کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آؤ فقیر والی کے دوستو تمہیں اس رات کے تارے دکھاؤں. پھر مجاوروں والی سبحان اللہ. میں نے شروع میں آپ کو کہا مجھے فیڈ بیک چاہیے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے. ہاں آؤ آؤ اس رات کی طرف تمہیں لے چلتا ہوں، تصور کی دنیا میں تمہیں جگاتا ہوں، یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس رات میں لے جاتا ہوں، ان کے تاروں کی چمک اور دمک دکھاتا ہوں، پھر تمہارے دلوں کو مہکاتا ہوں اور بات کو آگے چلاتا ہوں. توجہ رہے وہ بھی ایک رات ہے. میرا پیغمبر اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے، ساتھ دوسرے بستر پر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، ہاں ابو تراب اسد اللہ الغالب ابو الحسن والحسین جنت کے شہزادوں کے باپ جناب علی المرتضیٰ بھی سوئے ہیں. آدھی رات کا وقت ہے. جناب علی کہتے ہیں میرے کانوں میں تھوڑا سا شور آیا کہ شاید گلی میں کوئی شور شرابہ ہے. جناب علی کہتے ہیں میں خاموشی سے اٹھا اور جا کے میں نے دیوار سے جھانک کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح گلی میں منظر کیا ہے. جب میں نے دیکھا کہ گلی میں تو سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آج کی رات محمد کی آخری رات ہے. تو اب علی اور پوری توجہ رکھنا، چند جملے تمہارے دلوں کے کمپیوٹر میں سیو کر کے جانا چاہتا ہوں. 10 سال پہلے آیا تھا، اب شاید پھر 10 سال بعد موقع ملے تو 10 سال میرے ان چند جملوں کو انجوائے کرنا. میرے دوستوں توجہ رکھنا. جناب علی کہتے ہیں میں نے دیوار جھانک کے دیکھا، مجھے خطرہ نظر آیا، پریشانی نظر آئی. میں فوراً آیا اور آ کر میں نے پیغمبر کو جگایا. میں نے پیغمبر کو سارے بولو پیغمبر کو جگایا. اسی جگہ پہ ایک جملہ سیو کر لو کہ ایک نے خطرہ دیکھ کر میرے نبی کو جگایا، دوسرے نے خطرہ دیکھ کر میرے نبی کو سلایا. ایک نے خطرہ دیکھا تو میرے نبی کو جگایا اور ایک نے غار میں خطرہ دیکھا تو میرے نبی کو لوریاں دے کے سلایا. جس نے جگایا وہ بھی مقدس، لیکن جس نے سلایا وہ اس سے بھی بڑا مقدس. اب
हुजूर जागे और हुजूर ने पूछा अली खैरियत क्या हुआ? अली और मुर्तजा ने कहा अल्लाह के नबी परेशानी है, दुश्मन बाहर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं है, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। तो जनाबे अली ने कहा अल्लाह के नबी अब क्या होगा? हुजूर ने कहा कुछ भी नहीं होगा। अल हुजूर वो कैसे? तो हुजूर अकरम ने अली और मुर्तजा को बुलाया, करीब करके बिठाया और अपना सारा रूट और सारा शेड्यूल बताया कि अली मैं तुझे अपने बिस्तर पे सुलाऊंगा। क्यों? कि मक्का वालों की अमानतें हैं, ये सुबह तकसीम करके तू भी फलां जगह आना, मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा और वहां से 3 दिन के बाद मदीने जाऊंगा। तो माना क्या निकला कि हुजूर ने अली और मुर्तजा को अपना सारा शेड्यूल बता दिया था, कोई बात छुपाई नहीं थी। क्यों? कि नबी को अली पे नाज भी था, अली पे एतमाद भी था कि अली जान दे सकता है लेकिन नबूवत का राज नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, अब हुजूर ने मट्टी उठाई, शाहतुल वजू पड़ी और कुफ्र के चेहरों में डाली, ऐसी डाली कि आज तक कुफ्र के सरों में मट्टी नजर आती है। और हुजूर चले गए, दरवाजा खोला, हुजूर निकल गए, अली नबी के बिस्तर पे सो गए। अगला जुमला देने चला हूं और सहाबा के नौकरों तुम्हारे दिल पे ये जुमला नक्श करने चला हूं, तवज्जो रखना। हुजूर चले गए, थोड़ी देर के बाद अबू जहल एंड कंपनी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और पैगंबर की चारपाई के करीब जाकर अबू जहल ने देखा कि नबी की चारपाई पे कोई सोया हुआ है। अबू जहल ने समझा कि शायद नबी सोया हुआ है, लेकिन जब अबू जहल ने कहा कुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो, तो जब चादर चेहरे से हटाई तो आगे नबी नहीं था, अली था। कौन था? सारे बोलो कौन था? अली था। अबू जहल ने समझा नबी है, लेकिन चादर हटाई तो देखा अली है। ये बात भी 1400 साल पहले वाज़े हो गई। जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। काश अहले दिल 2-4 बैठे होते। हाँ, जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अभी अली को नबी समझेगा तो उसी की नस्ल से होगा। हाँ, अब अली उठे, जब देखा अबू जहल ने कि बिस्तर नबी का है, सोया अली है, तो अबू जहल के पांव से जमीन निकली, लर्जा बरंदाम हुआ, हिल गया कि बिस्तर नबी का है, सोया अली है। तो अबू जहल ने फौरन पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा चले गए। उसने पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। उसने फिर पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अली ने अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, नबूवत का राज भी नहीं बताया और झूठ भी नहीं बोला। यह भी नहीं कहा मुझे पता नहीं, यह भी नहीं कहा फलां जगह गए। अगर कहते हैं पता नहीं तो ईमान जाता है, अगर कहते हैं फलां जगह गए तो नबी की जान जाती है। अली मैं तेरे इल्म पर, अमल पर, हिल्म पर, हिकमत पर, बसीरत पर, दूरंदेशी पर, तेरी सदाकत पर, अमानत पर, दयानत पर, जुर्रत पर, शुजाअत पर करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अली ने नबूवत का राज भी नहीं बताया और तकिया भी नहीं किया, झूठ भी नहीं बोला। अबू जहल ने कहा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा चले गए। उसने कहा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। उसने कहा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अब आगे चलता हूं। अबू जहल ने कहा अपने सिपाहियों से, साथियों से, आओ ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, ये नबी का तरबियत याफ्ता है, ये नबूवत का राज कभी नहीं बताएगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आज की रात मोहम्मद कहां गए होंगे। तो सारे अबू जहल के साथी दौड़े और कहा अबू जहल जल्दी बताओ ताकि पीछा करें। अबू जहल उन्हें कोने में ले गया और कहता है, तवज्जो करना, फिर एक और जुमला तुम्हारे दिल में सेव करना चाहता हूं। अबू जहल कहता है कि मक्का वालों, मेरा दिल कहता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो वो अबू बकर के दरवाजे पे गया होगा। तो फिर मैं फारूकी शहीद की रूह को सलाम करके क्यों ना कहूं कि हाँ ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। अगर आज का कोई काला अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने तो वो कुफ्र में अबू जहल से भी आगे निकल गए। इसलिए कहता हूं कि दोनों बातें 1400 साल पहले वाज़े हो गई। अब अबू जहल एंड कंपनी भागे, नबी का पीछा किया और हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच गए। दरे सिद्दीक पे पहुंच गए, दस्तक दी, आवाज आई मंदकल बाब, जवाब मिलाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब अबू बकर दौड़े आए, दरवाजा खोला, सामने चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू निकल पड़े। तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। या शेख इधर देख, मैं मेहमान हूं, वो स्पीकर बनवाने वाले हैं, इसलिए कहता हूं मेरी तरफ तवज्जो रखोगे तो मैं तुम्हारे दिल में बात उतारूंगा। अब जनाबे सिद्दीक अकबर ने कहा, फिदा का अभी बउम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अगर कोई काम था, कोई मसला था, कोई वजह थी, हुजूर मुझे तलब कर लिया होता, कोई नुमाइंदा एल चीनो करका से पैगाम रसा भेज कर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आपने आधी रात को मेरे पास आने की तकलीफ क्यों की? तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा होगा, अबू बकर तुझे पता नहीं है, वो मायंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं तो किसी का पाबंद हूं, जैसे वो कहता जाता है वैसे मैं करता जाता। अबू बकर, मैं अपनी मर्जी से उठता नहीं, बैठता नहीं, सोता नहीं, जागता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, मैं बोलता नहीं। अबू बकर मैं तो उसका पाबंद हूं, जैसे वो कहता है वैसे मैं करता हूं। आज की रात मुझे आर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि मुझे आर्डर था कि खुद चल के तेरे दरवाजे पे आऊं। अब सिद्दीक, मुख्तसर करता हूं, बड़ी लंबी गुफ्तगू है, शॉर्टकट करता हूं। सिद्दीक अकबर ने पूछा, अल्लाह के नबी हुक्म, हुजूर हुक्म। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर चलो चलना है, अबू बकर चलो चलना है, आओ तारीख के सारे झरोकों में झांको, तारीख के औराक को पलटो, तारीख को जाके पूरा उलट पुलट करके देखो, कोई भी आई इमाम सियर नहीं लिखता कि अबू बकर ने ये कहा हो, हुजूर आधी रात को किधर चलना है, घर अकेला है, बीवी बच्चे अकेले हैं, अस्मा बच्ची है, बूढ़ा माँ बाप है, हुजूर जरा मोहलत तो दे दें, किसी के जिम्मे तो लगाऊं, किसी को सपुर्द तो करूं, हुजूर ऐसे कैसे चला जाऊं। अबू बकर ने एक जुमला भी नहीं कहा, हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। पूरी तवज्जो, बड़ा शॉर्टकट। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। अब चलते चलते हुजूर ने कहा, अबू बकर थोड़ा तेज कदमों से चलो, दुश्मन पीछे है, जरा जल्दी गार तक पहुंचना है। तो तेज कदमों से चलने लगे, थोड़ा दूर तक गए। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी एक मिनट रोक के मेरी बात तो सुन ले। तो हुजूर ने कहा, अबू बकर अभी तुझे कहा तेज चलो और तू कहते मैं रोक के तेरी बात सुनूं, वजह क्या है? चलता भी रहे, बात करता भी रहे। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी एक मिनट रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रब के पूछा, अबू बकर ऐसी क्या बात है कि जिसमें तेरी जान निकलने लग गई? अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी आपके पांव के तलवों के निशानों पर मुझे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं और वो लहू मेरी जान को निकाल रहा है कि आपके कदमों में खून और मैं आपको पैदल चलने दूं। पैगंबर मुस्करा पड़े और मुस्करा के कहा, अबू बकर पैदल न चलूं तो क्या करूं, आधी रात को सवारी कहां से आए? अबू बकर ने कहा, हुजूर अबू बकर साथ हो और सवारी की फिर क्या फिक्र? हुजूर ने कहा, वो कैसे? अबू बकर बैठे और बैठ के कहा, हुजूर मेरे कंधे हाजिर हैं, आज अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। आप मेरे कंधों पे चढ़े, मैं आपको उठा के गार पे पहुंचूंगा, पहाड़ पे चढ़ूंगा। तो मैं कहता हूं, जब हुजूर अबू बकर के कंधों पे चढ़े, तवज्जो रखना फकीर वाली वालों, हुजूर अबू बकर के कंधों पे बैठे तो फिर अबू बकर चल पड़ा, चौड़ा नहीं, दौड़ पड़ा, दौड़ा नहीं और चला नहीं, दौड़ पड़ा, दौड़ा नहीं, उड़ पड़ा। क्यों? यह जुमला मैं इसलिए कहता हूं कि वहां उड़ने के बगैर चारा ही नहीं था। वैसे भी मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूं तो पता चलता है, मेरे नबी के कदम अगर हलीमा की बीमार ऊंटनी पे आए तो वो भी उड़ने लग जाती है। मेरे नबी के कदम बुराक की सवारी पे आए तो वो भी उड़ने लग जाती है। और मेरे नबी के कदम अबू बकर के कंधे पे आए, अबू बकर भी उड़ पड़ा। इसके बगैर चारा ही नहीं। क्यों? आप में से बहुत सारे लोग हज उम्रे के लिए गए होंगे, हाँ, साहबजादा साहब भी, मौलाना भी, आप में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हज किया होगा, उम्रे किए होंगे। है अल्लाह सबको ले जाए, कह दो आमीन। हाँ सबको, मैं भी बहुत दफा गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से कह रहा हूँ। इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने मुझे 15 हज कराए, 45 उम्रे करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह का करम है। लेकिन मैं ये बात बताई इसलिए कि मैंने 60 दफा अल्लाह के घर के चक्कर लगाए, 60 दफा मैंने मक्के और मदीने का सफर किया, मगर उस 60 मरतबा में मुझे भी जवान आदमी हूँ, बड़ी हिम्मत और एनर्जी है, मैं भी सिर्फ 2 दफा गारे सौर पे गया हूँ। फिर आगे पीछे जाने को इसलिए दिल नहीं चाहता कि यार बड़ी लंबी चढ़ाई है, थक जाते हैं, ऑक्सीजन कम है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऊपर जाता है तो वो नीचे बकाले से मिनरल वाटर लेता है, जूस लेता है, फ्रूट लेता है, खजूर लेता है, और वो एक दूसरे को कहते हैं चलो यार गपशप
करते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। अबू बकर, मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे क्यों ना नाज करूं कि तूने ना कोई जूस पिया, ना फ्रूट खाए, ना खजूर खाए, ना पानी का घूंट पिया, एक सांस में नबूवत को उठाकर गार के दरवाजे तक पहुंचाया। ये चल के नहीं गया, उड़ के गया। नबूवत का बोझ कंधों पे, और कोई 3 मील पहाड़ी पे चढ़ सके? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं वो उड़ के गया, अल्लाह ने उड़ाया। अब फिर शॉर्टकट करता हूं। गार के दरवाजे पे पहुंचे, हुजूर को कंधों से उतारा। जो ही उतारा, हक बनता था। अबू बकर कहते, हक बनता था। अबू बकर कहते, हुजूर थक गया हूं, इजाजत हो तो 2 मिनट आराम कर लूं। हक बनता था ना? सारे बोलो, हक बनता था ना कि लंबी चढ़ाई, 3 मील पहाड़ की चढ़ाई। अबू बकर कहते, हुजूर थक गया हूं, 2 मिनट सांस ले लूं, आराम कर लूं, पानी पी लूं, कमर सीधी कर लूं। लेकिन अबू बकर, तेरी वफा पे दुनिया की सारी वफाएं कुर्बान करूं। अबू बकर ने हुजूर को कंधे से उतार कर ये नहीं कहा मैं थक गया हूं, बल्कि कहा हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके सफाई करता हूं, आप आके आराम कर लें। अब जब अबू बकर ने कहा हुजूर मैं अंदर जाके सफाई करता हूं, आप आके आराम करें, हुजूर ने फिर पूछा मुस्कुरा के, अबू बकर आज कैसी बातें करते हो, ये सफाई कहां से करोगे, झाड़ू कहां से लाओगे, हम तो झाड़ू घर से नहीं लेके आए थे, तुम कैसे कहते हो मैं झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा। तो अबू बकर ने फिर कहा अल्लाह के नबी सवारी नहीं थी, तो अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए। अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बने। अबू बकर अंदर गए और जाके सफाई की, कूड़ा करकट गंद बाहर फेंका, सुराखों पे कपड़े दिए, झोली फैलाई और हुजूर को आवाज दी, हुजूर बिस्तर बन गया है, आके आराम करें। हुजूर ने फिर पूछा अबू बकर बिस्तर कहां से आ गया, हम तो लेके ही नहीं आए थे। अबू बकर ने फिर कहा हुजूर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। अब हुजूर अंदर आए और अबू बकर की झोली में सर मुबारक रखा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इस मकाम पे कहा करते थे, जब सदाकत की झोली में नबूवत का सर आया, मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। जब अबू बकर की झोली में हुजूर का सर मुबारक आया तो मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। तुम कुरान देख के पढ़ के मजे लेते हो, अबू बकर ने नबी का चेहरा देख के पढ़ के मजा लिया। अब हुजूर आए, पूरी तवज्जो खुलासे कलाम की तरफ चलने लगा। हुजूर आए और आकर अबू बकर की झोली में सर रखा और सो गए। और बोल पड़ो, और सो गए। अब पूरी तवज्जो के साथ मेरे एक जुमले का जवाब देना, पूरी तवज्जो के साथ। हुजूर सिद्दीक की झोली में सर रख के सो गए। अब झोली सदाकत की है, सर सारे बोलो, सर नबूवत का है। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। ईमान से बताओ दरमियान में कोई फासला था? फासला था? बिला फासला, बिला फासला। अबू बकर जब नबी के साथ बिला फासल हुआ तो फिर काले सांप को तकलीफ शुरू हो गई कि कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फासल पे है, और नबी सिद्दीक के साथ बिला फासल हो गया। जाऊं दसूं और अबू बकर को जुदा कर दूं, लेकिन सिद्दीक ने भी गलत पे कहा होगा, कहा तू डस के अपना जोर लगा, सो मेरे गनी न भूलूं कि सितम की शब्द को जलाल है, तेरा जुल्म जब्र बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। इसलिए कहता हूं काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। काला सांप काला था ना, परेशान नहीं होना, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अबू बकर की आंखों में तो आंसू थे, तो मैं कहता हूं हंसते हंसते भी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हंसते हंसते भी कभी बंदे की आंखों से पानी निकल पड़ता है, खुशी के आंसू भी होते हैं। अब आगे चलता हूं। काले ने डसा कि मैं अबू बकर को नबी से जुदा कर दूं ताकि बिला फसल न रहे, बिला फसल न रहे। लेकिन काला डस डस के थक गया, भाग गया। अबू बकर आज तक बिला फसल है या नहीं? आज तक बिला फसल। नबी की कब्र के साथ मुत्तसिल अबू बकर की कब्र है, दरमियान में फासला ही नहीं, किसी और की कब्र मुखिल नहीं। अब अबू बकर को जब काले ने डसा
इसी जगह पे कोई तबर्रा करता है और कहता है कि अबू बकर गार में रोया था। मैं अपनी फिलॉसफी में कहा करता हूँ, अपने ज़ौक़ में, कि कौन कहता है अबू बकर रोया था। मैं कहा करता हूँ अबू बकर ना रोया था, ना रोने वाला था, ना रोने आया था। अबू बकर तो कालों को रुलाने आया था। अबू बकर रोया नहीं। सवाल उठता है फिर आंखों से आंसू क्यों? मैं कहता हूँ वो आंसू ही नहीं, आंसू और होते हैं, आंखों का पानी और होता है। कभी कभी इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं और कभी कभी पानी निकलता है। क्यों? कि इंसान अगर चूल्हे के करीब धुएं पे बैठ जाए और धुआं आंखों में चला जाए तो आदमी रोता है या पानी बहता है? सारे बोलो। अगर आदमी तपती दोपहर को सूरज की तरफ देखने लग जाए तो और रोता है या आंखों से पानी बहता है? अगर आदमी को नज़ला जुकाम और खांसी शदीद हो जाए तो वो खांसते खांसते छींकते छींकते उसकी आंखों से पानी निकलता है या वो रोता है? हाँ, तो मतलब क्या निकला? आंसू और होते हैं, आंखों का पानी और होता है। अबू बकर रोया नहीं, अबू बकर की आंखों से आंसू निकले नहीं, बल्कि अबू बकर की आंखों से पानी के कतरे निकले। मैं तो कहा करता हूं वो भी ना निकलते, रब ने निकाले। क्यों? कि उन्हीं पानी के कतरों को बहाना था, हुजूर पे गिराना था, नबी को जगाना था, वफा का मंजर दिखाना था। वगरना अबू बकर अगर सांप का जहर बर्दाश्त करके बैठा था तो वो अपनी आंखों का पानी भी पी जाता। तुम कहते हो ना, तो तुम्हारा अपना प्रैक्टिकल और तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, कहते हो ना फलां जगह पे मुझे रोना आया लेकिन मैं अपने आंसू पी गया, कहते हो ना। इसका मतलब है कि कभी कभी आदमी अपने आंसू पी सकता है, आंखों की बजाय अंदर ले जाता है। तो अबू बकर भी अपने आंखों के पानी को पी जाता कि ये ना निकले, लेकिन अबू बकर क्या करता? रब ने जो बहाने थे, हाँ रब ने बहाने थे, वो कतरे बहे। आगे तो चेहरे रसूल था, वो कतरे सीधे नबी के रुखसारों पे गिरे। इसी पे एक अपना जुमला टच करता हूं। जब नबी के रुखसारों पे वो कतरे गिरे तो मंजर ऐसे था जैसे रात के अंधेरे में फूल की कली पे शबनम गिरती है, फूल खिल उठता है, फूल खिल उठता है। हुजूर के चेहरे पर भी जब अबू बकर की आंखों के पानी के कतरों की शबनम गिरी, हुजूर खिल उठे, जाग पड़े। पूछा अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी, कोई काला सांप निकला था, उसने मुझे और आपको इकट्ठे देखा, मुझे डस लिया। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, तवज्जो करना, आखिरी जुमले कह रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, अबू बकर इधर ला एड़ी। अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर अबू बकर की एड़ी को रखा और अपनी शहादत वाली उंगली पर लुआब दहन लगाया और लगा के अबू बकर की एड़ी पे रगड़ा। जब रगड़ा तो हुजूर ने पूछा अबू बकर अब बताओ। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी, लगता है काले की मेहनत बर्बाद हो गई, उसकी मेहनत जाय हो गई, मेरा दर्द गया, जहर का असर गया। तो मैं इसी मकाम पे खुलासे कलाम पेश करते हुए कहा करता हूं कि यही लुआब दहन है जो आज अबू बकर की एड़ी पे लगा है। एक दिन यही लुआब दहन शेर खुदा जनाब अली उल मुर्तजा की आंखों पे लगा था। अब तसव्वुर की दुनिया में खुद जाके घर बैठ के सोचना, एड़ी कहां, आंखें कहां, अबू बकर कहां, अली कहां। एड़ी इंसान की इब्तिदा है और आंखें इंसान की इंतहा है। फैसला तो नबी ने खुद कर दिया कि अबू बकर को एड़ी पे लुआब लगाकर कहा कि एड़ी इब्तिदा में है तो तेरी खिलाफत भी इब्तिदा में है। अली को इंतहा में लुआब लगा के कहा आंखें इंतहा में है, तेरी खिलाफत भी इंतहा में है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी के सहाबा का सच्चा नौकर बनने की तौफीक अता फरमाए और नबी के सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जला कर सरे आम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।